Hello, everyone. Welcome to today's episode of Legal Update. The topic of today's discussion is Married to Victim. Should he go to jail? Why in news? Recently, in the case In Re Right to Privacy of Adolescents, the Supreme Court sought the center's view on suggestions made by amici curiae regarding reforms in sex education policies and real time tracking of POCSO cases. Background of the case. The case began suo motu after controversial remarks by the Calcutta High Court in POCSO acquittal. The accused, now married to the victim and father of her child, was convicted under Section C POCSO and Sections 376 subsection 3 and 376 subsection 2 N IPC. The victim, now an adult, did not want the accused punished, stating it would break her family. The court invoked Article 142 to refrain from sentencing despite restoring the conviction. Supreme Court issued guidelines on judgment writing and compliance with POCSO and JJ Act provisions. Court observation. The bench of Justice Abhay S. Oka and Justice Ujjal Bhuya acknowledged the peculiar circumstances of the case, particularly noting that the victim herself did not perceive the act as a criminal offense. While the court restored the conviction, it invoked its powers under Article 142 of the Constitution to defer sentencing, considering the present familial situation of the victim. The court recognized the nuanced and sensitive nature of adolescent romantic relationships, especially in the context of the rigid application of the POCSO Act. The court directed the center to form an expert committee on adolescent privacy and well being, stressing the need for real time data tracking and sex education reforms. Article 142 of the Constitution of India empowers the Supreme Court to pass orders or decrees necessary for ensuring complete justice in any case before it. Clause 1 authorizes the court to enforce such orders across India as per law made by Parliament or, in its absence, as directed by the President. Clause 2 enables the court to make orders to secure attendance, discovery of documents, or punish for contempt. This article has been used primarily for two purposes: to do complete justice beyond the constraints of statutory provisions, to fill legislative gaps where no existing law applies. Case laws. In Vijay Lakshmi v. State, the Madras High Court held that the POCSO Act was not intended to criminalize consensual romantic relationships between adolescents. It observed that applying the Act rigidly in such cases could harm both parties, especially when there is no element of force or coercion. In Ranjit Rajbanshi v. State of West Bengal, the Calcutta High Court interpreted penetration under POCSO as a unilateral act, stating that in consensual intercourse, the act may not be solely attributable to the accused. The court stressed that prosecution in such cases could negatively affect the victim and may not serve the ends of justice. Now it's time for today's practice question. Under POCSO, Section 6 deals with A. Sexual harassment, B. Use of children for pornographic purposes, C. Aggravated penetrative sexual assault, or D. Reporting of cases. Send us your answers in the comment section. Thanks for watching. पीड़िता से विवाहित, क्या उसे जेल जाना चाहिए? चर्चा में क्यों? हाल ही में किशोरों की निजता के अधिकार से संबंधित मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यौन शिक्षा नीतियों में सुधार और पॉक्सो मामलों की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग के संबंध में न्याय मित्र द्वारा दिए गए सुझावों पर केंद्र का दृष्टिकोण मांगा। मामले की पृष्ठभूमि। यह मामला स्वतः संज्ञान सुओ मोटू के रूप में शुरू हुआ जब कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा पॉक्सो मामले में बरी किए जाने पर विवादास्पद टिप्पणी की गई थी। आरोपी, जो पीड़िता से विवाहित है और उसके बच्चे का पिता है, को धारा 6 पॉक्सो और धारा 376 उपधारा 3 और 376 उपधारा 2 एन आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया।
पीड़िता, जो अब वयस्क हो चुकी है, नहीं चाहती थी कि आरोपी को सजा मिले, क्योंकि उसका कहना था कि इससे उसका परिवार टूट जाएगा। न्यायालय ने दोष सिद्धि बहाल करने के बावजूद सजा सुनाने से बचने के लिए अनुच्छेद 142 का सहारा लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लेखन तथा पॉक्सो एवं जेजे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन पर दिशा निर्देश जारी किए। न्यायालय की टिप्पणी। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को स्वीकार किया, विशेष रूप से इस बात पर गौर करते हुए कि पीड़िता ने स्वयं इस कृत्य को आपराधिक कृत्य नहीं माना था। हालांकि अदालत ने दोष सिद्धि को बहाल कर दिया, लेकिन उसने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए वर्तमान पारिवारिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सजा देने को टाल दिया। अदालत ने किशोरों के प्रेम संबंधों की जटिल और संवेदनशील प्रकृति को स्वीकार किया, खासकर जब पॉक्सो एक्ट को सख्ती से लागू किया जाता है। न्यायालय ने केंद्र को किशोरों की गोपनीयता और कल्याण पर एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया तथा वास्तविक समय डेटा ट्रैकिंग और यौन शिक्षा सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। संविधान का अनुच्छेद 142। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को अपने समक्ष किसी भी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेश या डिक्री पारित करने का अधिकार देता है। खंड 1 न्यायालय को संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार या उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के निर्देशानुसार पूरे भारत में ऐसे आदेशों को लागू करने का अधिकार देता है। खंड 2 न्यायालय को उपस्थिति सुनिश्चित करने, दस्तावेजों की खोज करने या अवमानना के लिए दंडित करने के लिए आदेश देने में सक्षम बनाता है। इस अनुच्छेद का उपयोग मुख्यतः 2 उद्देश्यों के लिए किया गया है: वैधानिक प्रावधानों की बाध्यताओं से परे पूर्ण न्याय करना, विधायी अंतरालों को भरना जहां कोई मौजूदा कानून लागू नहीं होता। संबंधित केस। विजय लक्ष्मी बनाम राज्य मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने माना कि पॉक्सो एक्ट का उद्देश्य किशोरों के बीच आपसी सहमति से बने प्रेम संबंधों को अपराध की श्रेणी में लाना नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में यदि इस कानून को कठोरता से लागू किया जाए तो यह दोनों पक्षों के लिए हानिकारक हो सकता है, खासकर जब इसमें बल या जबरदस्ती का कोई तत्व न हो। रंजीत राजवंशी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में कोलकाता हाई कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत पेनिट्रेशन को एक तरफा कृत्य के रूप में व्याख्यात किया। अदालत ने कहा कि आपसी सहमति से बने यौन संबंधों में यह कृत्य केवल आरोपी के द्वारा ही नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह भी जोर दिया कि ऐसे मामलों में अभियोजन चलाना पीड़िता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और यह न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकता। और अब समय है आज के अभ्यास प्रश्न का। पॉक्सो के तहत धारा 6 निम्नलिखित से संबंधित है: ए. यौन उत्पीड़न, बी. पोर्नोग्राफिक उद्देश्यों के लिए बच्चों का उपयोग, सी. गंभीर यौन उत्पीड़न, या डी. मामलों की रिपोर्टिंग। अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। देखने के लिए धन्यवाद।